باعث افتخار ہے کہ آج صدر آزاد جمہوریہ کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے موجود ہیں، اور سوچا کہ اس طرح پہلے بھی آپ کو ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی آئی پی سے ڈگریٹریز آتے ہیں پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے، ان سے انٹریکشن کا موقع فراہم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہماری کاوش ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے صدر صاحب تشریف رکھتے اور آپ جو بھی سوالات ہوں، کیونکہ ان کا سرکاری دورہ تھا برطانیہ کا اور بھی دو ممالک میں جانے کی ضرورت ہے، تو مجھے سمجھا کہ بہتر رہے گا کہ صدر صاحب کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو، تاکہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں صدر آزاد کشمیر سے آپ کا رکھیے گا۔ تو بغیر further wasting time, I would now request the Mr. President to say a few words and then you سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پازیٹیو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی ذرائع ابلاغ کی کارکردگی ہے بہت ہی اچھی ہے، آپ لوگ بہت متحرک اور فعال ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان سے باہر یہاں جو ذرائع ابلاغ کی کمیونٹی ہے وہ فعال ترین ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ اس وجہ سے بھی بنتا ہے کہ یہاں جو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کشمیر کی بہت ایکسٹینسو کوریج کرتا ہے، اور اس نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ساری دنیا میں گیا ہوں، رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے جس باقاعدگی کے ساتھ آپ کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، اداریے لکھتے ہیں، اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے جو آپ کی اس اقتدار کی وجہ سے یہاں جو ہمارے تارکین وطن کی کمیونٹی ہے، یا جو اب برطانوی شہری بن چکے ہیں، یا یہاں برطانیہ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بات کی اس سرگرمی کا خیالات اور مثبت اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہاں حاضر ہوا کئی وجوہ کی بنا پر، جیسے کہ ہائی کمشنر صاحب نے فرمایا کہ برطانیہ بہت اہم ہے۔ برطانیہ اس لیے اہم ہے کہ یہاں برطانیہ نے حقوق انسانی کے سلسلے میں ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے۔ یہاں کے قومی ضابطے بین الاقوامی حقوق انسانی کے بارے میں ضابطے موجود ہیں، پارلیمنٹ نے بھی اس قسم کے قوانین منظور کیے ہوئے ہیں۔ برطانیہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، لہٰذا امن و سلامتی کے حوالے سے، حقوق انسانی کے حوالے سے اس ملک کی خصوصی ضروریات بھی بنتی ہیں۔ برطانیہ کا اپنا کامن ویلتھ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، آج تک یہ یورپین یونین میں بھی خاصا متحرک رہا ہے۔ تو ان تمام وجوہ کی بنا پر، اور سب سے بڑی وجہ یہ یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ کے قریب کشمیری مزدور برطانوی موجود ہیں، اور پھر اس میں اضافہ کیجیے کہ پاکستانی مزدور یہاں لوگ موجود ہیں برطانیہ میں۔ ان کی مجموعی تعداد اتنی ہے کہ پاکستان سے باہر یہاں کسی دوسرے ملک میں، برطانیہ میں کمیونٹی کا ارتکاز، پاکستانی کشمیری کمیونٹی کا ارتکاز سب سے زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے ہم کلام کی خصوصی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر چل رہا ہے، ہندوستان کے مظالم کی انتہا ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے وہاں مخصوص کشمیر میں، اور وہاں لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کسی قسم کا قانون نہیں ہے، کالا قانون ہے، کالے قوانین جن کا سہارا لے کر وہ کشمیر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ویسے تو 70 سال سے کشمیری قربانی لے کے چلے آئے ہیں، اور ہندوستان کے استبداد پر کسی قسم کی کمی نہیں آئی، لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد جو 8 جولائی 1916 کو ہوئی تھی، انہوں نے ہندوستان کی قابض افواج نے اپنے ظلم و ستم، اپنے قتل و غارت گری کو تیز تر کر دیا ہے، اور عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے ہندوستان کے لیے یہ چیز بہت ہی فرسٹریٹنگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں
पहले उनके हीले बहाने खड़े हुए थे, कहते थे पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा है और खुद कहते थे ये जो कश्मीरी हैं दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं। लेकिन अब सारी दुनिया के सामने ये तस्वीर खुल के आ रही है कि कश्मीरी अमन पसंद हैं, अमन परस्त हैं, उनकी तहरीक आज़ादी और अमन है, वो एक इसका सियासी मसला कश्मीर का सियासी और सिफाती हल चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक। तो उसके लिए उनकी जद्दोजहद है। और जो मैं हिंदुस्तान की फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहा था, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अब जो है ये कोई 100, 150, 200 मज़ाहमतकार, मसल्ह मज़ाहमतकार ये जद्दोजहद नहीं कर रहे। ये हज़ारों लाखों कश्मीरी अपनी जानों की परवाह किए बगैर, और उसमें तलबा और तालिबात भी शामिल हैं, वो पूरे मकबूजा कश्मीर में बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में और जो गांव हैं वहाँ निकल आए हैं और उनकी एक ही आवाज़ है कि हिंदुस्तान वापस जाओ, हमारा कश्मीर छोड़ो। और उनका एक ही नारा है आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी उनका बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ये उनका इस्तिहक़ाक़ है। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हम उनको अखलाकी, सियासी और सिफाती हिमायत दे रहे हैं। लेकिन ये ना समझिए कि ये हिमायत जो है कमज़ोर है। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और हम ये समझते हैं कि ये कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में आबाद हैं, ये हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। और वहाँ जब दर्द होता है तो वो दर्द हमें होता है, जब उन्हें तकलीफ़ होती है हमें तकलीफ़ होती है, उनके ऊपर क़यामत टूटती है, वो हमारे ऊपर भी क़यामत टूटती है। लेकिन हिंदुस्तान के मसालिम जो है इस तक महदूद नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो एक तरफ तो उन्होंने एक पूरी जंग मकबूजा कश्मीर के लोगों को मुसल्लत की हुई है, दूसरी तरफ वो जो है LOC के पाक आज़ाद कश्मीर के सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। हर साल जो है सैकड़ों शहादतें हो जाती हैं, उसमें हमारे जो है आर्म पर्सनल भी हैं और सिविलियंस भी। और फिर जो है उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक तरपर्दा जंग का आगाज़ किया हुआ है। वो समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर इतना मजबूत मौक़िफ़ लिया है तो उसे सज़ा देने के लिए क्वाटा में, बलूचिस्तान में, कराची में, गवादर में हालात को बिगाड़ा जाए और पाकिस्तान दुश्मन और पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को वहाँ मुसल्लत किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने का मकसद ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान से राब्ते मजबूत कर किए जाएँ। एक नई पार्लियामेंट है और हमने अरकान पार्लियामान से ये कहा जिनसे मेरी मुलाकात हुई है और जो तारकीन वतन हैं, ये डायस्पोरा कम्यूनिटी, उनसे हमने ये कहा है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके फ्लोर बार बार इस मसले के ऊपर तवातुर और तसल्सल के साथ अगर बहस व तमीज़ होगी मसला कश्मीर के लिए, तो उससे मसला कश्मीर को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। एक चीज़ हम शुक्रगुज़ार हैं कि हाई कमीशन या हमारी कम्यूनिटी या अरकान पार्लियामान की कोशिश की वजह से 19 जनवरी 2017 को एक बहुत जामे डिबेट हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स और वहाँ तमाम मेरा ख्याल 26 के करीब जो है बोले थे अरकान पार्लियामेंट, और उनमें से 24 ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। तो हम समझते हैं कि उस किस्म के मबाहसे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों की कॉज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मामूल साबित है। दूसरे हमने ये कहा है कि अगर दोनों जमातें जो हैं, बल्कि जो सारी जमातें कंसर्वेटिव्स हैं, लेबर है, दूसरे जो सियासी क़ुव्वतें हैं, इनमें कश्मीर के सिलसिले में राब्ता मजबूत होना चाहिए और इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और तीसरे हमने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ाल करने में, उसका अपना सही किरदार अदा करवाने में बरतानिया की हुकूमत एक अहम किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि बरतानिया, जैसे मैंने पहले कहा, बरतानिया सलामती काउंसिल का मुस्तक़िल रुकन है और अमन व सलामती के हवाले से इसकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। तो हमारी ये तवक्को है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पे ज़ोर देगा कि वो चैप्टर 6 of the United Nations Charter
کی پرسوئنس میں اپنا رول ادا کرتا ہے. وہ رول ہے میڈیشن کا, گڈ آفیسز کا, کنسیلیشن کا, ایجوکیشن, اور اس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا. دوسری یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے سلامتی کونسل کو کہے کہ وہ جو آج تک قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا اس کے لیے نئے حالات پیدا کرے گا تبھی وہ عمل درآمد ہو سکے, تاکہ کشمیر میں رائے شماری ہو سکے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی. تو اور اس کے علاوہ چونکہ حقوق انسانی کی کونسل میں بھی برطانیہ کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور وہ نہ صرف وہاں جو ہے کچھ مسئلہ کشمیر کو اٹھانے میں پاکستان کے وقت کی مدد کرے, بلکہ ہندوستان کے اوپر براہ راست دباؤ ڈالے, اور ہندوستان کے ساتھ جو اعلیٰ سطحی ان کے مذاکرات ہوتے ہیں یا ان کی تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے دوران, ان کی گفتگو کے دوران, جو بھی کہ ہم مشاورت کے دوران جب معاہدے دستخط کرنے لگے تو اس میں یہ مسئلہ کشمیر کو ضرور اٹھا. تو یہ میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کے کوئی سوال میں ڈاکٹر صاحب میرا نام مبین چودھری ہے اور میں یہاں صحافی ڈائریکٹر ہوں. آپ جیسے سینئر صحافیوں سے عام سیاستدانوں والا کوشچن ضرور رکھتا, اور میں سم اپ کرتے ہوئے جو خامی یا خرابی ہے اس مسئلے کے حوالے سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف پاکستان میں جاسوس پکڑایا جاتا ہے, اس کے باوجود وہ چلے جاتے ہیں جنیوا میں داد رسی کے لیے. دوسری طرف ہمارے کشمیری مر رہے ہیں, ایک میں چلے جاتے ہیں, دوسری طرف ہمارے کشمیری مر رہے ہیں اور ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. خرابی کا, کمی کا, آپ جیسا بندہ جو اتنے عرصے سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اور اب عملی طور پہ اس ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ یقیناً ہمیں امید تو ہے کہ آپ اس کو بہتری لائیں گے, لیکن ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں جو یہاں کے 14 لاکھ کشمیری آباد ہیں, جو میڈیا والے ہیں, کہ کہاں کمی ہے جس پہ ابھی فوری طور پر فوکس کیا جائے. دیکھیے, دو چیزیں میں کہوں گا. پہلے میں پاکستان کو اور پہلے جموں کشمیر کو خراج تحسین چاہتا ہوں کہ 70 سال گزر گئے ہیں, ہندوستان نے ہر حربہ آزمایا, ظلم و استبداد, سیاسی رشوت دینے کی اور معاشی رشوت دینے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کو, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حریف جماعتیں وہاں بنائی ہیں, پاکستان کو اور کشمیری کو بدنام کیا ساری دنیا میں, اور ہر طرف سے دباؤ ڈلوایا ہے. یعنی امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈلوایا, یورپی یونین کی طرف سے دباؤ ڈلوایا, خود دباؤ ڈالتا ہے کہ بھئی کشمیر کے مسئلے پہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جاتا ہے. پاکستان نے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے اس موقف پہ قائم رہنے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف سے ہلا نہیں, اور کشمیری 70 سال گزرنے کے بعد تمام شہادتیں دینے کے باوجود ہندوستان کی ریاست میں جذب نہیں ہوئی. اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے آزادی, ہمیں ہندوستان کی حکمرانی قبضے سے نجات چاہیے. تو یہاں میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کو, پہلے جموں کشمیر کو انہوں نے آزادی کی مشعل کو زندہ رکھا ہوا. آپ نے کمیوں اور کوتاہیوں کی بات کی تو ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ 1970 کی دہائی سے لے کر اب خلوص نیت سے ہم نے جو دو طرفہ مذاکرات کے بعد کے اوپر انحصار کی, اس کی وجہ سے ہمیں بے حد نقصان ہوا ہے, کیونکہ یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے. ہندوستان نے بہت چالاکی اور عیاری سے ایک تو ایجنڈے میں ترمیم کر دی. پہلے جو ہے کشمیر کور ایشو ہوتا تھا, اب یہ جو ہے 8 میں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے یا آئٹم ہوتا ہے یا 10 میں سے ایک ہوتا ہے. اور ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ جو مذہبی سیر و سیاحت ریلیجس ٹورزم اور کشمیر جو ہے وہ ایک ہی ہم پلہ ہو جائے, ایک ہی جیسے آئٹمس ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہم میں کیا کمی کوتاہی ہے, کمی کوتاہی نہیں ہے. ہم نے تمام مصیبتوں کے باوجود ثابت قدمی سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ ہندوستان سے بھی کوشش کی کہ اگر اس کا کوئی دو طرفہ حل نکل سکتا ہے یا سیفریقی حل نکل سکتا ہے کشمیر سے مذاکرات کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے, کو ہم کسی طریقے سے حل کریں, لیکن وہ نہیں ہوا. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو اس میں بنیادی طور پر میرا موقف ہے, میں اس کا پرچار کرتا رہا ہوں پچھلے دنوں,
जहाँ भी मुझे मौका मिला कि दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जाएँ, दोबारा बैन अवी फॉरम्स की तरफ जाएँ, बैन अवी पार्लियामेंट्स की तरफ जाएँ। बैन अवी मतलब जो ताकतवर पार्लियामेंट्स हैं उनके बैन अवी और भी पार्लियामेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जो IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यूरोपियन यूनियन है मिसाल के तौर पर, तो ताकि और बुनियादी तौर पर आपकी तवज्जो का मरकज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली, सेक्रेटरी जनरल और हुकूक़ इंसानी की काउंसिल होनी चाहिए। और जैसा कि आपने फरमाया कि जो दरवाज़ा हमें मिलेगा बैन अवी सतह पे उसको खटखटाना चाहिए ताकि हम नताइज हासिल कर सकें। जनाब सर आपने कहा कि कमी नहीं है, मैंने कहा कमी है, लेकिन हम ये थोड़ा सा समझना चाहते हैं, हम इतने अच्छे मकसद के लिए पूरी दुनिया में मेरे भी डालें कि सलाहुद्दीन जो है वो फ्रीडम फाइटर है, पूरी दुनिया शायद जानती है उनको, लेकिन जो मोदी है वो अमेरिका में जाकर उनको इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिलवा रहे हैं। और हमारे पास जो है वो रियली टेररिस्ट हमारे पास पकड़ा हुआ है जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कुलभूषण यादव। हम उसको उस तरीके से दुनिया के सामने नहीं पेश कर सके जिस तरह की इसे करना चाहिए, और जो फ्रीडम फाइटर है वो दहशतगर्द करार पाया। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी कमी है जो हमारे शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर हम कहें तो ये देखिए पाकिस्तान ने तमाम हक़ाइक़ के सामने भी रखे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी रखे हैं। यही भी पाकिस्तान ने यही बताया कि कुलभूषण यादव एक हिंदुस्तान की एजेंसी, सुराग रसानी एजेंसी, जासूसी एजेंसी जो उसका नुमाइंदा है, और वो सिर्फ एक जो है सिर्फ एक एजेंट नहीं था बल्कि वो एक नेटवर्क का कमांडर भी था। वो हाजिर सर्विस है। तो हक़ाइक़ तो वाशिंगटन के सामने भी हैं, हक़ाइक़ जो है न्यूयॉर्क के सामने भी है, न्यूयॉर्क के अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी है, तो उसमें कोई तो कमी होता ही नहीं हुई। हाँ अलबत्ता अगर हमने मजम्मत करनी है तो दुनिया के दौरे मियार की मजम्मत करें, और हमने की है। हमने कहा है कि सलाहुद्दीन किसी भी तरीके से आलमी दहशतगर्द करार नहीं दिया जा सकता, और दूसरी ये कि उसने अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। अमेरिका का अपना कानून कहता है कि आप उस शख्स को आलमी दहशतगर्द करार देंगे जिसने अमरीकी मफादात को जंग लगाई हो या अमरीकी पर्सनल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो हमने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, और आप भी ज़राए इब्लाग के लोग इस बात की दौरे मियार हैं जो हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव है। उस झुकाव के दौरान उन्होंने अमेरिका ने मज़लूम का साथ नहीं दिया, उन्होंने जालिम का साथ दिया। ना तो ये चाहिए था कि जो काबिज़ अफवाज है उनको दहशतगर्द करार दिया जाता। जो काबिज़ सलाहुद्दीन ने कितने लोगों को तय किया है, और लेकिन जो 8 जुलाई से लेकर अब तक जो है सैकड़ों लोग जो काबिज़ अफवाज हैं उनको ख़त्म कर चुकी हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं। तो मैं जैसा कि काले कवानीन का इस्तेमाल करके उनका बहाना बना के उनका सहारा लेकर उनको मारा। तो दौरे मियार पे हम सरापा एहतजाज हैं, और आप भी हमारा हाथ बटाइए ताकि हम उन लोगों को बेनकाब कर सकें जो इस किस्म के दौरे मियार इस्तेमाल करें। वो एक आप जनाब फरमाइए। जी मेरा नाम आप इनका हाथ क्या है? थैंक यू सरदार साहब, खुशी हुई कि आप यहाँ आए हैं बरतानिया में, और मैं समझता हूँ आप जैसा कोना मुझ ब्यूरोक्रेट कम से कम पाकिस्तान की उसकी ज़मीन पे नहीं है। आपने हर मरहले से अपने आप को गुजारा। आप पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर के स्पोक्समैन भी रहे हैं, अब UNO स्पोक्समैन रहे हैं, आप चाइना के एम्बेसडर भी रहे हैं, और अब आप आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद आप तमाम चीज़ों को समझते हैं, बुझते हैं, उसके बावजूद कोई रिज़ल्ट नहीं सामने आ रहा। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ आए हैं, हम पाकिस्तानी रिपोर्टर बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जितना आपको पता है शायद आपको ज़्यादा पता होगा, हमें थोड़ा सा कम पता होगा। हमें तो तमाम हालात का पता है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि यहाँ की मीडिया जो UK की मीडिया है उसमें गए हों, उनको अपना रोजगार सुनाई हो, या किसी और कंट्री में गए हों, उनको कुछ बताया हो, ताकि उनको पता, उनके ज़मीरों को अच्छे जोड़े, उनको पता चले कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारे पास बैठ के आप अपनी रोजगार सुना दें, एक ही बात है, बस यही मेरा क्वेश्चन। मैं जब दूसरी जगह पर जाता हूँ तो वहाँ फॉरेन मीडिया से ज़रूर मिलता हूँ। आजकल जो है फॉरेन मीडिया के लिए
ضروری نہیں کہ آپ صرف اس ملک میں جا کے سفر کر کے وہاں ان سے ملیں. ہم اسلام آباد میں بھی ان سے مل سکتے ہیں. وہاں ان کے تمام نمائندے موجود ہیں, AP کے, FP کے, رائٹرس کے. اس کے بعد ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جو باہر کے ان کے نمائندے بھی موجود ہیں. برسلز گیا تھا تو وہاں برسلز کے اخبارات کے تھے, ان سے بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی. جب میں امریکہ گیا تھا یا کہیں بھی جاتا ہوں تو ان سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی تجویز اچھی ہے, لیکن اگر میں آپ سے نہ ملتا تو آپ شکوا کرتے کہ جناب یہ ہم سے مل کے نہیں. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے, وہ آپ تشریف لائے. وہ شکوا, لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ یہاں کا جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے پاکستان میں تمام میڈیا اویلیبل ہے ہر ملک میں, لیکن اسپیشلی یہاں چھوٹے بڑے میڈیا کے لوگ جو ہیں, اگر آپ اپنی آواز وہاں تک پہنچائیں تو میرا خیال وہ زیادہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے, میں اس کے اوپر عمل کروں گا. ویسے ابھی جو ہائی کمشنر صاحب نے کھانا دیا ہوا تھا وہاں ٹیچر آف اسپورٹس سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. راستے میں یہاں کہیں بھی کوئی ہمیں صحافی ملے, ان سے ملاقات ہوئی ہے, ہم اپنی آواز پہنچاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں شاید میں اس تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ منظم انداز میں رکھنا چاہیے. تو یہ اچھی تجویز ہے. اور پہلا آپ نے کیا کہا تھا کہ نتیجہ نہیں آ رہا. ہم لوگ کوشش آپ کی قابلیت جی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. جتنے آپ قابل ہیں, جتنے آپ کو ایکسپیرینس ہے, اس حساب سے آپ UNO میں بھی رہے, اس کو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم لوگ کوشش کریں گے, اور کسی مگر واحد کی قابلیت اور استعداد کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پورے پورے جو مجھ آپ نے میری تعریف کی, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں محفوظہ کشمیر کے لوگوں کو جو روزانہ شہادت اور تحریک آزادی کو اپنے لہو سے لکھ رہے ہیں. عورتیں جو ہے وہ نکل آئی, تو اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی, ہمیں وہ توجہ نہیں مل رہی کہ جو ملنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو بین الاقوامی مسائل ہوتے ہیں یا فلیش پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پوری کی پوری عالمی برادری متحرک ہو جاتی ہے, لیکن اہل کشمیر کو یتیموں کے طور پر ایسے جیسے کہ ہم بین الاقوامی برادری کی یتیم, اس طریقے سے ہمیں کہ ہم بے سہارا ہے, مشکل والا نہیں. لیکن میں ابھی جو ہائی کمشنر صاحب نے دیا ہوا تھا اس میں نے بات کی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم بے دست و پا ہیں, ہم بھی تاریخ کے کفر ہیں. کشمیری جو یہ ظلم سہتے رہے ہیں, ہم ضرور آزاد ہوتے رہیں گے. اور یہ ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کی بھی نفی کریں کہ ہم تنہا ہیں. ہمارے ساتھی اور دوست ہیں ساری دنیا میں موجود, اتنے نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے, اتنے نہیں ہیں جتنے ظالم کے, لیکن ہم اس مقام پر پہنچ کر دکھائیں. صاحب آپ کا بڑا ظاہر سوال تھا, میں صرف گزارش کرتا چلوں. پچھلے 3 روز میں صدر صاحب کی 15 کے قریب ممبرز آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی, بریڈفورڈ, مینچسٹر, اور ادھر تشریف لانے سے پہلے ابھی اوپر میرے دفتر میں 4 ممبرز آف پارلیمنٹ میں جو تمام مین اسٹریم پارٹیز ہیں, لبرل, کنزرویٹو, لیبر. آئی تھنک یہ آؤٹ ریچ کا ایک سلسلہ ہے. آپ کی بالکل سر وجہ ہے آپ کی بات کے فورن میڈیا سے ملنا چاہیے, لیکن ممبرز آف پارلیمنٹ جو اب نئی پارلیمنٹ, وہ تو ممبر آف پارلیمنٹ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہر دفعہ ملتے ہیں. آپ یہاں آئیں, کشمیری لیڈروں سے ملیں, مل کے چلے جائیں, بات ایک ہی ہے. لیکن یہاں کا جو عوام ہے جنہوں نے شور ڈالنا ہے کہ ان کو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان تک آواز جانی. کل IISS میں ان کی ایک تقریر تھی یہاں کے جو تھنک ٹینک, تو پورا پروگرام پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں, لیکن باہر آپ کی بالکل تجویز بلکہ یہ اس کے بعد جو ہے بریڈفورڈ لٹریری فیسٹیول میں ہم نے سیمینار کیا کشمیر کے اوپر, اور یہ دوسرا جو پروگرام ہے اس کا کوشش جاری رکھیں اور کوشش ہونی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور کوششیں برابر ہونی چاہیے. اس میں ایک تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کوششیں کریں گے اور دوسروں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری کوششوں کو کامیاب کریں. یہ انگلش سب کی بات ہے. ابھی آپ سے سر آپ نے ہمیں توجہ نہیں دی. جب ہم یہاں پہ ڈاکومنٹیشن سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ خیال ڈالیں, پھر ہم سیاسی ڈیولپمنٹ کریں, پھر دنیا کا ساتھ دیں, کیونکہ دنیا میں ٹیررزم ایک بڑا مسئلہ ہے. تو انڈیا اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل اور پھر ہمارے لیے مثال کر رہا ہے. ہم پاکستان کے ہمیں جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کو چھوڑ کے پورا سیاسی ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں. کشمیر کے اندر جو پتھر لے کے بات کر رہی ہیں, جو
कुर्बानी दे रहे हैं, उनका हम साथ नहीं करते। दूसरी बात कि इंडिया कश्मीर को अपना अंदरूनी मसला कहता है, लेकिन अब तक तो अमेरिका के पास खुद लेके गया है इस मामले को, इस इंटरनेशनल टेररिस्ट कराने को। आपने खुद उस मसले को आगे तक हमारे पास मौका है कि हम उससे बात कर सकें। ये आपने अच्छा नुकता उठाया है और हम इस तरफ बैन राजी को भी दिलाएँ, लेकिन ये जो है ये बहस जीतने की बात नहीं है कि हम ये कह दें कि हिंदुस्तान को मालूम है कि ये बैन मसला है। अगर ये बैन मसला नहीं है तो फिर क्यों उन्होंने खुद जो है स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है जम्मू कश्मीर को, कश्मीर को। दूसरा पहला ये था कि ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर किसी किस्म की अस्करी मामलत नहीं कर रहे हैं इस वक्त अहले मकबूजा कश्मीर, और इस किस्म की मामलत के तमाम रास्ते खुद हिंदुस्तान ने मसदूद किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। जो उन्होंने इतनी बड़ी फसील वहाँ खड़ी की हुई है, इसको फेंसेस के ज़रिए और लैंड माइंस के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ज़रिए वहाँ उनको कोई अबूर नहीं कर सकता। और जो है हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मसल्ला मज़ामत भी बहुत कम है। हिंदुस्तान को खौफ है और डर है उन हज़ारों और लाखों लोगों से जो सड़कों पे आते हैं। तो इस वक्त ये मैं आपको बताता हूँ, आपसे मेरी अपील भी है कि इस हम की नशो इशात करें कि इस वक्त जो सारी की सारी तहरीक है वहाँ मकबूजा कश्मीर पूरा में। जनाब थैंक यू वेरी मच। तो मेरा UK 44 का ताल्लुक से मजीद का नाम है। जैसा आप विज़िट कर रहे हैं बरतानिया का और यूरोप में भी जाएंगे, अमेरिका में भी जाते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि सफारती सतह पर मसला कश्मीर की जो कश्मीरी क़यादत है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये कभी भी बड़ी क़यादत से नहीं मिले हैं। जैसे बरतानिया में वज़ीर आज़म से कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई है, बकिंगम पैलेस में कभी इनको मदऊ नहीं किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई है, और यूरोपीय यूनियन के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ भी कभी एज ए इंडिविजुअल कश्मीरी लीडरशिप की कभी मुलाकात नहीं हुई है। और आप पूरा दबाव डाल रहे हैं कि बरतानवी जो इस्टेब्लिशमेंट है या बरतानवी गवर्नमेंट है वो आगे बढ़े और मसला कश्मीर का झंडा लेके चले। तो आपको बरतानिया से इतनी तवक्कुआत क्यों है, जबकि आप भी किसी बड़ी लीडरशिप से अभी तक जो सफारती सतह पे ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं कर पाए? इसमें दो चीज़ें हैं। पहले ये है कि हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो कराची एग्रीमेंट के तहत और वैसे भी जो पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक़ है और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक निज़ाम तरतीब दिया था उसके मुताबिक हमारी नुमाइंदगी पाकिस्तान होता है। जब दुनिया के जो आप जिनके हुक्मरान की बात करते हैं तो जब हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा या बाकी वज़रा मिलते हैं तो ये मसला उठाते हैं और उससे करने से पहले वो हमसे मुशावरत ज़रूर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो उस वक्त सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद आए थे। उससे पहले मुज़फ़्फ़राबाद आए थे। मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने आज़ाद कश्मीर की काबीना, उसकी क़यादत और उसके बाद ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ ख़ुसूसी मुलाकात की, एक बहस व तमीज़ हुई, हमने सिफारिशात की और उन सिफारिशात को उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। इसी तरीके से वो अगर किसी और अपने हम मनसब से मिलते हैं, किसी सदर से मिलते हैं तो ये मसला उठाते हैं। जो मुशीर ख़ारजा हैं वो अपने हम मनसबों से इस मसले को उठाते हैं। फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारा मुस्तक़िल मंदूब होता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर के तमाम पहलुओं को वहाँ उजागर करे। और यही ज़िम्मेदारी जो है जिनीवा में हमारे मुस्तक़िल तो ये न समझिएगा कि हम तनहा हैं, या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम लोग जो है वो टेरेसा मे से नहीं मिल सकते तो टेरेसा मे के साथ हमारा रब्ता ही नहीं। हमारा अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता रब्ता से। मैं असल साहब गुजारिश करूँ कि अभी अप्रैल में कंजर्वेटिव पार्टी का 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में सदर साहब से मुलाकात की, मुज़फ़्फ़राबाद में हालात देखे, कैंप्स में गए, आई थिंक ये
सिलसिले तो जारी रहते हैं। फिर आपको याद होगा कि 19 जनवरी को यहाँ पे जो डिबेट हुई, यहाँ पे पार्लियामेंट में 30 से ज़्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट ने कश्मीर के हक़ के मुताबिक के बारे में बात की। आई थिंक ये सिलसिले जारी रहनी चाहिए और इससे फ़ायदा है, इसी से प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पर, यकीनन वो इस प्रेशर को सुनेंगे। जी असल मैं क्वेश्चन को नहीं, मैं एक मौजूद दिलाना चाह रहा हूँ जो आपने मीडिया के किरदार की बात की बरतानिया में पाकिस्तानी, तो उस हवाले से कुछ मुश्किलात अब शुरू होने जा रही हैं। मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस पर भी आ रहा हूँ। PTV को जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है यहाँ पे ऑफकॉम, उसको कश्मीर के मुतालिक खबरें देने पे उसे रीच इन लाइसेंस कंडीशन करा दिया गया। परसों ही फैसला हुआ। मैं आपको भी वो आपके करूँगा क्योंकि इंडियन काफ़ी बहुत मुतहरक हुई हुई है। पहले मरहले में PTV को उन्होंने हो सकता है वो फाइन भी हो, वो एक फैसला आया उनका कि कश्मीर के वाले से मीर वाइज और उनके जो ऑलरेडी चल रही थी जो बेनकाब करने के लिए खबरें होती हैं, तो उस पर उन्होंने काफ़ी मुतहरक हो गए। हमारे वो उसी हवाले से खबर थी, कश्मीर के हवाले से जो मुजालिम हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा अपने फैसले में कि आपने इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं किया। तो ये पहली दफ़ा होगा कि इस तरह एक हमारा जो नेशनल सरकारी TV है उस पर ये करने की कोशिश की गई है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, मैं आपको फैसले की कापी भी दूँगा, उस पर हमें ऑफकॉम से भी मेरे ख्याल बात करनी चाहिए और उस पर हमें कोई ना कोई आगे इस तरह करना चाहिए, क्योंकि ये रोकना चाह रहे हैं मीडिया को उनके खिलाफ खबरें हैं उनको हाईलाइट करने से। तो इस इशू पे मैं हाई कमिश्नर साहब, प्रेसिडेंट साहब। सर थैंक यू अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ये रेज़ किया। एंड अगर आप मुझे डिटेल देंगे, मैं कल कॉल है मिनिस्टर स्टेट के रेज़ के, मैं बिल्कुल रेज़ करूँगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यू कि अगर मुझे डिटेल्स दें। PTV हमारा कौमी इदारा है, उसको अगर कोई जिक्र चाहेगा तो हम बिल्कुल उसके साथ में खड़े होंगे। और बहुत शुक्रिया आपने रेज़ किया। पहले मरहले में PTV किया, कभी मैं दूसरे मरहले में उसको मैं आपको ईमेल करूँगा। जी एक्सप्रेस न्यूज़ पहले तो आपको लगाने में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग पाकिस्तानी मीडिया में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो आपने कहा कि आपकी आवाज़ उठाती कितनी सीरियस है, तो आज तक 4 साल गवर्नमेंट के हो गए हैं, मैंने आज तक कोई फॉरेन मिनिस्टर ने प्रॉपर बनाया, और उसके अलावा जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हमें मौलाना फजल रहमान को बनाया गया, क्या वो प्रॉपर आवाज़ कश्मीरियों की राइट्स की उठा सकते हैं? आप ये समझते हैं उनकी जगह किसी कश्मीरी को ये पोस्ट देनी चाहिए बेहतर तरीके से कश्मीर के हवाले से? आप ये तो नहीं कह रहे कि वज़ीर ख़ारजा भी कश्मीर अच्छा जी, ये जो ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि काबीना में वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, मुशीर होना चाहिए, ये सवाल मरकज़ी हुकूमत से होता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ज़्यादा तजवीज़ मालूमात की रोशनी में कि हमारे मुशीर हैं आबिद हदीज वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, और वो उनकी ज़िले क़यादत जो है और नाफिस बहुत और 4 साल में उन्होंने पूरी हुकूमत में और सत्तार अजीज़ साहब जो उनकी वजह से पूरी टीम की वजह से बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की ख़ारजा। तो दूसरी बात यह है कि आपने ज़िक्र किया मौलाना रहमान का कश्मीर का, मैं उसका हमेशा ही जवाब देता हूँ, कश्मीर को कश्मीर न करें, पूरी पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है, और पार्लियामेंट में सरकार स्पीकर साबिक साहब बहुत मजबूत क़यादत को दिया करते हैं। कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने कश्मीर तहफ़्फ़ुज़ का इनकार किया था, वो अपने हम मनसब स्पीकरों से फैसला कश्मीर को उठाते हैं, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी उन्होंने बारहा ये मसला उठाया है। कश्मीर कमेटी जो है उसके इख्तियारात महदूद हैं, वो सिफारिशात मुरतब करती है, और उसके बाद वो सिफारिशात या पार्लियामेंट को दे देती है पूरी पार्लियामेंट, या फिर इंतज़ामिया के हवाले उनके ऊपर अमल दरामद ख़ुद इन दो इदारों का ताल्लुक़ है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर कमेटी तक महदूद करने के लिए पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है कि मसला कश्मीर को एक कमेटी की बस की बात नहीं है। अगर उनके पास इस किस्म की कोई जादू की छड़ी होती, वाहिद मसला कश्मीर हल कर चुके होते, उनके पास वो छड़ी नहीं है, और अभी तो पूरे पाकिस्तान के पास भी ये छड़ी नहीं है, लेकिन हम उस छड़ी की तलाश करेंगे। डार साहब और फिर सरवर साहब
सर शौकत आलम दुनिया से अभी जैसे कहा कि अगर कश्मीर में जो हालात हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं मतलब कश्मीर से फिर ज़्यादा इसके मुझे पता है कि वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो एक तरफ तो वो कश्मीरी अपने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जंग हो रही है, अदालतों में जंग हो रही है, JIT और ये मामला चल रहे हैं। तो आप कैसे देखें इस पर कश्मीर पे क्या असर पड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से साइड लाइन हो गया कश्मीर का जो इस वक्त हाईलाइट होना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक जरूरी अमल है, उसमें जो है कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझ रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी कुव्वतें पाकिस्तान के मसला कश्मीर के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं और वैसे पाकिस्तान की रियासत की कामयाबी के लिए सियासी इस्तेहकाम और सियासी तसल्सल ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से किसी भी जमात ने अपने मसला कश्मीर के सिलसिले में मौक़िफ़ को कोई लचक पैदा की हो या किसी किस्म की को उसमें कमी है, इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं, इससे कोई असर नहीं। सर अगर हम गुज़िश्ता 70 वर्षों पर नज़र डालें तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की तमाम एफर्ट्स नाकाम रही, हिंदुस्तान की हरदर्मी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे मौके पर क्या ये मुमकिन नहीं है जिसका कि एक हल के तौर पर, और मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय ये है कि सबसे ज़्यादा कंक्रीट प्रपोज़ल होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि बरतानिया ने हाल ही में मना किया कि हम थर्ड पार्टी के तौर पर कश्मीर के मसले में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये बायलैटरल मसला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के इसको। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत विद द सपोर्ट ऑफ कश्मीरी पीपल अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, आपकी भी इतनी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, MP से हुई हैं, पिछले 4-5 रोज़ के दौरान मज़ीद होंगी, तो अगर आप उन पर ये जोर दें कि आप कुछ ना करें, कम से कम थर्ड पार्टी के तौर पर इन्वॉल्व हो के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल मुज़ाकरात करवाएँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। दूसरा जो सवाल है मेरा ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, कश्मीर के अवाम और कश्मीर की हुकूमत, इन सबसे बढ़ के अगर कोई कश्मीर की आवाज़ को उठाया है तो वो सोशल मीडिया है। मेरे पास आज भी अगर आप मेरा फ़ोन को देखें तो कम से कम 24-25 फुटेज ऐसी हैं जो सबके पास है। तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि हुकूमत पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत एक भरपूर कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्री बनाए, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दावतें होती हैं, सब कुछ होता है, अब ये कॉमन्स में या लॉर्ड्स में मीटिंग्स होती हैं, तो क्यों ना वो अगर मुमकिन हो सकता है तो वो डॉक्यूमेंट्री दिखाएं ताकि देखने का असर ज़्यादा पड़ता है, बातों का असर कम होता है। डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं और मैं कहूँगा कि हाई कमिश्नर साहब से कहूँगा और जो हमारे मीडिया एशियन मीडिया एडवाइजर का तो वो डॉक्यूमेंट्रीज आपको दे बनी हुई। और आपने दुरुस्त कहा कि सोशल मीडिया बहुत ही मौसर वसीला और ज़रिया है कश्मीरियों का पैगाम पहुँचाने के लिए, कश्मीरियों को जो जुल्म हो रहा है उससे पर्दा उठाने के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसमें एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट किया हुआ है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँच रही। दूसरा आपने ये कहा है कि थर्ड पार्टी इंटरसेशन की बात की, मैं ये कहूँगा कि मसला कश्मीर के 4 फरीक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कलीदी फरीक हैं जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने ये फैसला करना है कि उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। और चौथा फरीक है अक़वाम मुत्तहिदा, यानी कि बैन अक़वामी जमातें। तो एक चौथा फरीक पहले से मौजूद है जो ज़ामन भी है और सहूलतकार भी था और अब भी वो है, उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरे ममालिक की बात है तो ठीक है, बरतानिया ने माज़रत की है, लेकिन अमेरिका बल्कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने 2-3 मरतबा कहा है कि वो मसला कश्मीर के ऊपर अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं मीडिएशन। फिर यह है कि नॉर्वे के मुल्क जो है क्योंकि उसका डिप्लोमेसी में ख़ास रोल है, नॉर्वे कंट्रीज़ का, ख़ुसूस नॉर्वे का, उसने भी दिलचस्पी का इज़हार किया है। और भी बहुत से ममालिक मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सिफारत, ये सालसी वहाँ से आनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से। आपको पता है बान की मून
और एंटोनियो गुटेरेस दोनों ये कहते हैं, तो अल्फाज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों ये कहते हैं कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, गुड ऑफिसर्स देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमादा हो जाए। तो हिंदुस्तान क्यों आमादा होगा? वो तो जुल्म कर रहा है, वो तो स्टेटस को चाहता है। तो इसलिए ये है कि हम लोग, ये हमारे मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से कि वो गैर मशरूत अंदाज में इसके ऊपर अपना रोल अदा करें। दूसरा, ये कभी ना कहिएगा कि पाकिस्तान नाकाम हो चुका है। अगर नाकाम होता तो उसकी कोशिश नहीं, बोलना कोशिश नहीं, मैं वही पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर कोशिश नाकाम अगर होता तो ये मकबूजा कश्मीर तो जज्ब हो चुका हो, ये वो उनका टूटा अंग बन चुका हो। अभी तो ये टूटा हुआ अंग है, ठीक है, कहाँ है उनका टूटा अंग? ये इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर 1947-48 में ख़ासतौर से 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान कब्जा न करता तो आज ये सारे के सारे जो कश्मीरी शहरी हैं, मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं, वो आपकी रियासत का हिस्सा होते। तो ये हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नाकाम। Sir, with your permission, 2 questions last round. जी, आसिफ साहब and then Mujahid. जी जी, मेरा नाम अफसर चौधरी है सर। मेरा सवाल नहीं सजेशन है कि पाकिस्तान मीडिया तो अपना रोल प्ले कर रहा है कश्मीर के लिए, आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारे इज़्ज़तमाब भाई कुशतर साहब, सफारत खाने तमाम अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? जैसे अगर साहब ने भी कहा कि इंडियन जो मीडिया है वो बड़ा लॉबिंग है उनकी इंग्लिश मीडिया के अंदर, कि जब हमारी सरकारी सतह पे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं वो हाई कमिश्नर को इन्वॉल्व करें और जो ब्रिटिश यहाँ पे कश्मीरी लॉर्ड्स और पार्लियामेंटेरियन हैं उनको इन्वॉल्व करें कि हमारे आने से पहले आप इंग्लिश मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसके लिए लॉबिंग करें। सुबह भी एक पार्लियामेंट के अंदर आज प्रोग्राम था, एक अभी होने जा रहा है, यहाँ भी है। अगर आप लोगों के आने से पहले ये लॉबिंग कर ली जाए तो फिर दूसरे इंटरनेशनल जो मीडिया उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ताकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चले कश्मीर काज के लिए ये काम हो रहा है। हम तो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इज़्ज़तमाब भाई मिशर साहब भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सेशन है बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों की जो ब्रिटिश कश्मीरीज़ हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं और वो ज़ाहिर कश्मीर की आवाज़ मुस्तकिल उठा रहे हैं, तो ब्रिटिश के बाशिंदे होने मतलब कश्मीरी ब्रिटिश होने के बावजूद भी बरतानिया उनकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहा, उनको क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा? आप क्या सोचते हैं? ये तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा? आप तो यहाँ रोज़ रहते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी आवाज़ सुन रहा है और इसमें इजाफा होगा, यकीनन में इजाफा होगा, लेकिन ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी हाज़िर हो रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ बरतानिया में जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका असर और सुख बढ़ रहा है और हम लोग जो है सच्ची बात ये है कि जो यहाँ हैं पाकिस्तानी और कश्मीरी माशाल्लाह बहुत मुतमद्दिन हैं, बहुत खुशहाल हैं, उनका असर और सुख बढ़ रहा है। अभी जो है 12 MPs वहाँ 9 से 12 हो गए जी 9 से 12 हो गए 9 से तादाद 12 हो गई है। और उसके अलावा ये है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं आपकी इज्जत है, जहाँ जो भी पाकिस्तानी हो, तो ये इनका असर और सुख बढ़ेगा। इसमें एक तो है नंबर्स जिनका आपने जिक्र किया कि इनकी तादाद, लेकिन दूसरा ये है कि हमें ये भी दौर है कि सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी की वजह से नहीं, बल्कि बरतानिया की जो अपने उसूल हैं, क्योंकि इंसानी से मुताल्लिक़ इंसानी बैन-अ-अक़वामी कानून जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन हवाले से उनकी जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं वो उनको पूरा करें। सर इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। आज सुबह बरतानिया पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया गया है कि अगर शाम के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों तो हम वहाँ पर फौजी मुदाखलत करेंगे। शाम को कोई भी मेम्बर पार्लियामेंट नहीं है, शाम को मेयर मौजूद नहीं है, हमारे मेम्बरान पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन अपने माशी मफादात को देखते हुए, अपने सियासी मफादात को देखते हुए फैसले कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ से मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई गरज होती
तो फिर शाम के मामले में रिलीफ फोर्स भेजने की बात कैसे की तो कश्मीर में जो ज़्यादा इंसान की क्या एक हद तक आप बात कर सकते हैं और ये तजवीज़ जो है आप बताने ये भी कुछ ऐसे हमने पार्लियामेंटेरियन से पूछते हैं जवाब भी आप उसको दे दिए थैंक यू ये तो आप वायु स्टम्प जैसे सदर साहब ने कहा हमें यकीन की और मजबूती के लिए तो हमारे यही हमें करनी है मैं जो सबसे ज़्यादा लैग देखता हूँ कि हमने नेशनलिज्म वोट लिया जो थैंक यू रणदीप साहब का आना ज़्यादा ज़रूरी है जो इस वक्त हम इससे बखों में प्रोड्यूस के आने से सिर्फ हमने एक प्लेटफॉर्म किया है जरूर Thank you very much. Please, next. सामने